Hey guys, welcome to Unacademy. So this is our channel 11 CBSE Commerce Quest. So on this particular channel, we're going to discuss all your subjects, every topic in the format of questions and answers. So every topic and every subject that you have in your commerce syllabus, we will be discussing them in the format of questions and answers. So quick introduction about myself. I'm Reeti Spandana. I've done BTech in Instrumentation and Control Engineering and I have 9 years plus teaching experience. I'm a faculty from Hyderabad. So basically, let's discuss what you're going to get on Unacademy subscription platform. So on the subscription platform, you're going to get daily live classes. So basically here, live classes give you a real time classroom experience. तो आप आपके घर पे बैठे सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ आप डेली लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस देख सकते हो और लाइव सेशंस का एडवांटेज ये रहेगा कि यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स इन योर लाइव चैट. So basically all sessions are going to be live on the subscription and you're going to get all your doubts clarified. So this gives you a real-time classroom experience. Then you have live tests and quizzes. So basically this gives you a real-time experience of writing an examination. And it basically helps you in understanding what is the area that you need to work on and what area you already are good at. तो ये लाइव टेस्ट और क्विजेज आपको रियल टाइम एक एग्जाम का एक्सपीरियंस देते हैं और इनसे आपको पता चलेगा आपको कौन से एरियाज में हार्ड वर्क करना है और कौन से एरियाज में आप अच्छे हो. Structured courses. So basically structured courses are any course that is completely complying to your CBSE pattern and CBSE syllabus. So a structured course is basically anything where your CBSE pattern is complied to. तो जो भी यहाँ के सेशंस रहेंगे वो सब आपके CBSE पैटर्न के हिसाब से रहेंगे. So there won't be any deviation from your pattern. So every session's sole purpose will be कि आपका स्कोर इंक्रीज हो जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले आपके एग्जामिनेशन में. एंड दिस इज़ योर अनलिमिटेड एक्सेस. सो अनलिमिटेड एक्सेस यहाँ पे इसका मतलब होता है कि जो आप डेली लाइव सेशंस अटेंड कर रहे हो, अगर किसी दिन आप अटेंड नहीं कर पाते हो उस सेशन को, यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू दी स्पेशल क्लासेस एंड द रिकॉर्डेड सेशंस. तो यू कैन गो बैक एंड लिसन टू दीज रिकॉर्डेड सेशंस. दिस इज़ वन. एंड द सेकेंड थिंग दैट यू कैन रिमेंबर इज़ अगर आपको रिवाइज करना है दोबारा, आपका 2 days में एग्ज़ाम है और आपको हर टॉपिक हर सब्जेक्ट वापस आपको रिवाइज करना है, वापस आपको वो सेशंस रिपीट करना है, तो यही सेम लाइव सेशंस जो है आपको एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे. सो यू विल बी एबल टू अटेंड एंड लिसन टू ऑल ऑफ दीज क्लासेस विदाउट एनी प्रॉब्लम. So you will be basically listening to lectures of top educators. तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो सिर्फ एक एजुकेटर का क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो, आप जितने भी एजुकेटर्स का क्लासेस अटेंड करना चाहते हो कर सकते हो. सो बेसिकली इफ़ यू आर अटेंडिंग वन लाइव सेशन यू विल ऑल्सो हैव एक्सेस टू all other classes recorded by other faculty members. So you don't have to stick to one particular faculty member, but you need to you can attend all faculty members sessions. So this is comprehensive syllabus. So comprehensive syllabus basically is where you can your entire syllabus will be discussed on this particular platform. We'll be discussing all topics and everything that is in your CBSE syllabus. All you have to do, students, is to just download the Unacademy Learning app from your Google App Store और Apple App Store. तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आप आपके ऐप स्टोर में जाए, गूगल या एप्पल, और ये ऐप हम लोगों का जो Unacademy लर्निंग ऐप है उसको आपको डाउनलोड करना है. एंड यू हैव टू सेलेक्ट अ कोर्स. इन दिस केस इट इज़ 11 CBSE class 11th. So you need to select a particular course here and then you are good to go. You just have to subscribe. So here are a few subscription details. So ये जो Quest है हमारा चैनल वो सिर्फ 11 CBSE के लिए ही नहीं है, ये आपको 9 CBSE, 10 CBSE और 11 CBSE साइंस, 12 CBSE कॉमर्स एंड साइंस सभी चैनल्स का आपको मिल जाएगा.
So let's look at subscription details. So here जो आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा, लेट्स इमेजिन कि आप एक प्राइवेट ट्यूटर को रखते हो आपके डेली लेसन्स के लिए और एक रिवीजन के लिए या फिर आपके एग्ज़ाम्स के लिए. सो उसी प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अलग ट्यूटर को रखना पड़ेगा. इसका मतलब आपके दिन का पूरा टाइम आपको उसके हिसाब से डिवाइड करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. तो आपको बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं. हाउ इज़ दैट? बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट ऑल सब्जेक्ट्स एंड every all questions and answers related to your CBSE pattern on one channel and in one subscription. So the subscription cost is basically 12,500. बट इफ़ यू यूज़ माई कोड हियर RITI, ये जो मेरा कोड है उसको आप अगर यूज़ करते हो और सब्सक्रिप्शन लेते समय तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा. तो आपका सब्सक्रिप्शन ईयर का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 11,250 रुपीज़. सो स्टूडेंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड डील और आपको बहुत ज़्यादा एक हेल्प मिलेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी. सो प्लीज़ डोंट डिले, सब्सक्राइब टुडे. So guys, today's topic is how to write an article and speech, effective ways to improve your writing skills. So आपको already पता है कि आपके English section में जो है you have 20 marks for written section. So writing section that is section B जो है वो divide किया गया है. 20 marks जो आपके writing skills के लिए रहेंगे और 10 मार्क्स जो आपके ग्रामर क्वेश्चंस रहेंगे. सो योर सेक्शन बी हैज़ राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, जिसमें से राइटिंग स्किल्स को 20 मार्क्स है. येस, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर एग्जामिनेशन. तो इस 20 मार्क्स में 10 मार्क्स जो है वो आपका एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइनिंग और नोटिस राइटिंग और लेटर राइटिंग के लिए डिवाइडेड है. और 10 मार्क्स, पूरे 10 मार्क्स आर गिवन फॉर स्पीच राइटिंग और एन आर्टिकल राइटिंग. So you need to remember that out of 80 marks in your examination, 10 marks are what we are going to discuss in today's session. So आज के सेशन में हम आप ये 10 marks को सबसे ज़्यादा कैसे लेके आ सकते हैं, what part of that article carries how many marks और उसको इफ़ेक्टिव वे में किस प्रकार से लिखने से आपके नंबर बढ़ेंगे और how you are going to score more marks is what we are going to discuss in today's session. So today's session is mainly focusing on those 10 marks question. That is, you have only one question जिसमें internal choice है. तो आपको एक या तो स्पीच लिखना पड़ सकता है या फिर एक आर्टिकल लिखना पड़ सकता है या फिर दो आर्टिकल्स के बीच में यू नीड टू चूज़ विच आर्टिकल यू वांट टू राइट. सो बेसिकली दीज 10 मार्क्स कम नहीं होते हैं. 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा नंबर है. सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन. सो व्हाट इज़ एन आर्टिकल? तो आर्टिकल क्या है? एक आर्टिकल जो लिखते हैं वो एग्जैक्टली होता क्या है? सो एन आर्टिकल इज़ बेसिकली अ राइट अप ऑन वेरियस टॉपिक्स एंड ओपिनियंस. तो एक आर्टिकल, जैसे अगर हम न्यूज़पेपर को लेते हैं, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल हियर, टाइटैनिक सिंक्स 1500 die और एटॉमिक बॉम्ब हिट्स जापान. तो जब ये दीज न्यूज़ आर्टिकल्स विच आर देयर, सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, ये कोई बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे है. तो कभी हम क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं, हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, हम लोग कोरोना वायरस के बारे में पढ़ सकते हैं, COVID-19. सो देयर आर मेनी टॉपिक्स दैट यू कैन रीड ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में लोग लिखते हैं और हम पढ़ते भी हैं, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, ब्लॉग्स में, जर्नल्स में, एवरीवेयर. So basically an article is nothing but something that a person writes in order to express his or her opinion on a particular topic. एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए या एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ओपिनियन या अपना इंफॉर्मेशन देते हुए जो है वो उसको एक आर्टिकल बोलते हैं. सो एन आर्टिकल इज बेसिकली अ राइट अप ऑन वेरियस टॉपिक्स एंड ओपिनियंस. What is the purpose of an article? So let's look at this. Article क्यों लिखते हैं? So it helps you convey the information or opinion you want to. It has a larger reach and you can have a wider audience. So basically
Okay, so I can see that two people have entered the live chat session. Good evening, Vikas. Good evening, Mahati. Can you both hear me? Good evening, Shishir. So I hope I'm audible to everybody. I hope everyone can hear me. I hope कि सबको मैं जो बोल रही हूँ वो सुनाई दे रहा है. Let me continue now. So it helps you convey the information or opinion you want to. It has a larger reach. You can have a wider audience. So basically, let's say आपको एक particular opinion है आपका. The maximum that you can do here is give that opinion to your friends or your family members. तो आपकी जो reach है आपकी opinion को फैलाने का वो सिर्फ आपके family members और आपके friends तक ही हो जाता है. So if you want to reach out to the public, if you want to reach out to a public platform, if you want to reach out to a larger audience or larger reader section, then you have to write an article and publish it in something which circulates to a lot of people. तो आजकल everybody reads a blog, एवरीबडी रीड्स मैगजीन्स, जर्नल्स और न्यूज़पेपर तो हर किसी के घर पर आता है. और न्यूज़पेपर के इतने सारे ऐप्स हैं जो हर किसी के फ़ोन में भी रहते हैं. सो अगर आपको एक पर्टिकुलर आपकी जो सोच है, आइडिया है, उसको अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं, आप उस बात को फैलाना चाहते हैं, देन दिस पर्टिकुलर एन आर्टिकल इज़ द बेस्ट वे टू डू इट. आप एक आर्टिकल लिखोगे, सो दैट्स द बेस्ट वे you can spread your word to the public. So here the purpose of an article is to convey the information or opinion you want to. तो एक आपका जो सोच है वो पब्लिक तक पहुंचाता है एक आर्टिकल. दूसरी चीज़ जो आर्टिकल करता है वो है आपको एक छोटा प्लेटफॉर्म और छोटे ग्रुप की जगह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएगा आपकी ओपिनियन या सोच को. सो वेयर डू यू सी आर्टिकल्स? आपको आर्टिकल्स दिखते कहाँ हैं? तो आपको आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में दिखते हैं, मैगजीन्स में दिखते हैं, ब्लॉग्स में दिखते हैं, जर्नल्स में दिखते हैं. सो बेसिकली एन आर्टिकल इज एवरीवेयर. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. सो किस किस टॉपिक्स पे आर्टिकल्स बनते हैं? सो व्हाट आर द टॉपिक्स ऑन विच यू कैन राइट? तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको एग्जामिनर पूछ सकता है? तो एग्जामिनर कौन से टॉपिक्स आपको एग्ज़ाम में दे सकते हैं और उनको कैसे आंसर करना है. सो दीज आर द टॉपिक्स विच यू जनरली फाइंड इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, एवरीवेयर. और यही जनरल टॉपिक्स आपको एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकते हैं. So let's quickly look at this. Interests. स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक. तो आपको किसी भी इन चीज़ों के बारे में एक आर्टिकल लिखना पड़ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, राइट एन आर्टिकल ऑन अ स्पोर्ट्स मीट, or let's say in a particular year, for example, because of COVID-19, the IPL in the country has been cancelled. So there could be an article asking you to write about why do you think it's necessary to cancel IPL, or what do you feel about this decision of the government. तो ये पूछा जा सकता है कि IPL कैंसिल होने की वजह से आपको कैसा लग रहा है, या IPL कैंसिल किए हैं ये जो स्टेप है वो कितना ज़रूरी है. सो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर अ टॉपिक. तो ऐसा कोई भी टॉपिक हो सकता है जो इंटरेस्ट के बेसिस पे हो, दैट इज स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट. जैसे कोई एक पर्टिकुलर मूवी है, उस मूवी को ऑस्कर मिला हो या कोई एक ऐसा अवार्ड मिला है, तो आपको पूछ सकते हैं आपको कितना जस्टिफाइड लग रहा है, कितना आपको सही लग रहा है कि वो मूवी को जो है वो अवार्ड मिला है. या फिर व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन सच कंटेंट. ऐसे मूवीज़ बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है सोसाइटी पे. सो देयर कुड बी मैनी टॉपिक्स. ऐसे हज़ारों टॉपिक्स हो सकते हैं. तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि किस टॉपिक, किसी भी इनमें से टॉपिक के ऊपर आपको आर्टिकल लिखने के लिए बोला जा सकता है. सो स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, आर्ट, लिटरेचर. तो कभी आपको एक किसी आर्टिस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इस डिस्क्रिप्शन के बेसिस में व्हाट डू यू थिंक शुड हैपन, और व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस. सो इट कुड बी एनी ऑफ दीज.
देन इट कैन बी ऑन करंट अफेयर्स, तो किसी एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बारे में आपको लिखने पूछ सकते हैं, किसी एक इकोनॉमिक डिसीजन के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे अगर रिसेशन आता है कंट्री में तो किस किस चीज़ों पे वो इम्पैक्ट करता है, एक्सेट्रा. देन यू हैव बिजनेस के बारे में भी कुछ भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई कंपटीशन है एक पर्टिकुलर बिजनेस को तो किस प्रकार से वो डील कर रहा है या क्या वो सही है गलत है. इट कैन बी एनी ऑफ दोज टॉपिक्स. इट कैन बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Then it can be general and social issues like agriculture. For example, there can be a topic like organic farming. Organic farming के बारे में कुछ आर्टिकल पूछ सकते हैं आपको लिखने. एनवायरनमेंट के बारे में, सो पोल्यूशन, दे कैन आस्क यू टू राइट अबाउट मे बी द ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स, और जो ब्राज़ील में अमेज़ॉन फॉरेस्ट फायर है उसके बारे में आपको लिखने पूछ सकते हैं. सो एनी ऑफ दीज टॉपिक्स कैन बी गिवन टू यू. एंड पब्लिक वेलफेयर, तो इनमें से कुछ भी टॉपिक दे सकते हैं. सो देर आर टू थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर हियर. फर्स्ट थिंग इज आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा. तो आपको किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए आपको खुद को एक जनरल नॉलेज की ज़रूरत है. सो इफ़ अ पर्टिकुलर आर्टिकल और अ टॉपिक इज गिवन टू यू इन द एग्जाम, यू शुड ऑल्सो हैव सम नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक. तो आप बिल्कुल ब्लैंक होकर कोई भी टॉपिक को आंसर नहीं कर सकते हो. तो आपको थोड़ा सा कंटेंट के लिए अपना खुद का एक जनरल नॉलेज भी होना ज़रूरी है. सो विच मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एवरी डे जो है वो न्यूज़पेपर और कोई भी मैगज़ीन है, कोई भी आर्टिकल है, उसको पढ़ते रहे. एंड यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड. सो बेसिकली एन आर्टिकल कैन बी ऑन एनी ऑफ दीज टॉपिक्स. सो इफ़ इट इज़ ऑन एनी ऑफ दीज टॉपिक्स, आपको ये टॉपिक्स के बारे में पढ़कर प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा. नॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक आइडिया तो आपको रहना चाहिए. सो यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट दीज थिंग्स. अगर कोई पूछेगा आपको एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में, तो आज की डेट पे क्या एनवायरमेंटल इश्यूज़ है अपने कंट्री में या अपने वर्ल्ड में, इतना आपको जानकारी होना चाहिए. सो बेसिकली यू नीड टू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन in the world in order to be able to answer these questions. So ये questions को answer करने के लिए, apart from how to write them and how to make your answers effective, the first and foremost thing that you need to do is to read and increase your general knowledge. आपको रोज पढ़ना पड़ेगा और आपका general knowledge जो है वो improve करना पड़ेगा. So you don't need too much of information again, but you need to have basic idea. आपको बहुत ज़्यादा information की ज़रूरत नहीं है, but basic idea तो आपको डेफिनेटली रखना पड़ेगा हर पॉसिबल टॉपिक के ऊपर. सो ये पॉसिबल टॉपिक्स है जिसमें से आपको आर्टिकल या स्पीच बात करने के लिए आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट कमेंट हियर. सो गुड इवनिंग कामेश, गुड इवनिंग सौरभ. Okay, so if you have any doubts, any other anything else you want to discuss, you can leave it in the comments here. Okay, let's move on. So what is the format of an article? So the article starts first with a title. तो हर आर्टिकल के लिए एक टाइटल होना बहुत ज़रूरी है. So you have to write a title for an article. इसका आपको 1 mark मिलेगा. So out of the 10 marks that you have for your article question, you will get 1 mark for the title. So let's discuss what exactly is the title in the next slide. Now let's look at the format. The second part which is important is the introduction. Introduction of the author as mentioned in the question. तो जो भी आर्टिकल आप लिख रहे हो उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, यू आर राम एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिकॉज यू आर हैप्पी अबाउट दिस इवेंट इन द कंट्री, और यू आर डिसअपॉइंटेड विद दिस इवेंट इन द कंट्री. हाउ डू यू फील अबाउट इट, और व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट. तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन में जो है एक ऑथर का इंट्रोडक्शन दिया जाता है आपके एग्जाम में. सो इन द क्वेश्चन वट एवर ऑथर नेम हैज़ बीन मैंशन, यू विल बी दैट person. So whoever the examiner is mentioning in the question, you're going to be that person. तो ये आपको अपने आप को उस पर्टिकुलर ऑथर के रोल में डालना है जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है और आपको लिखना है. तो आपको खुद का भी इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, दैट हु यू आर एंड व्हाट डू यू डू. फॉर एग्जाम्पल, देयर कैन बी अ टॉपिक. ऐसा भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि आप एक किसी कंपनी का CEO है और आपका कंपनी जो आप सेल करना चाह रहे हो किसी और बड़े कंपनी के
आपको और आपको क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिख रहे हैं इसमें. तो ऐसे में यू नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ दैट येस आई एम द CEO ऑफ दिस एंड आई हैव बिल्ट अप माई कंपनी फ्रॉम स्क्रैच. मैंने अपने कंपनी को सबसे पहले स्टेज से यहाँ तक पहुँचा है. इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा. सो वट एवर यू आर राइटिंग यू नीड टू गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ. एंड व्हेन आई से इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, आपका इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि वो ऑथर जिसके बारे में आपको लिखना है, जिसके ऑथर के यू नीड टू पुट योर सेल्फ इन दैट ऑथर शूज एंड राइट एट पर्टिकुलर टॉपिक. आपको उस ऑथर का जो है इंट्रोडक्शन देना जो कि आपके क्वेश्चन में मैंशन रहेगा. So this is very very important. And what introduction you need to give, that also we're going to discuss in the next slide. Then comes the body of the article. So body जो है वो बीच के paragraphs होते हैं. For example, title के बाद you have the first paragraph which is your introduction. So introduction एक पूरा एक paragraph बन जाता है और body of the article जो होता है वो बाकी के जो बीच के paragraphs हैं उनको हम body of the article बोलते हैं. तो ये जो body of the article है उसमें क्या आता है, उसमें supporting statements आते हैं, examples आते हैं, pieces of evidence. So pieces of evidence is whatever evidence I want to give, उसके evidence की जो list है उसमें बहुत सारे हम लोग evidence प्लांट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं. सो दैट इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. सो एविडेंस का मतलब सिर्फ एक प्रूफ होता है. तो कोई भी फैक्ट्स है, कोई भी प्रूवन फैक्ट्स है, कुछ भी है, उन सब चीज़ों को हम जो है इसमें इंक्लूड करेंगे. ओपोजिंग स्टेटमेंट्स, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा किसी भी टॉपिक को जो दिया गया है उसको सपोर्ट ही करें. कभी कभी आप ओपोज भी करना चाहते हो किसी टॉपिक को. जैसे कभी आपका स्टैंड पूछा जाएगा, व्हाट इज़ योर स्टैंड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू गोइंग टू always support the topic. You can also oppose the topic. Oppose का मतलब होता है go against the topic. So you can also go against the topic. So if you're going against, then you need to mention the opposing statements. और अगर opposing statements दे रहे हो तो again you have to mention the examples and pieces of evidence for the opposing statements also. Next you have to give the statistical data. So statistical data जो है अगर आप use कर रहे हो आपके एग्जाम में तो you can use statistical data which is approximate to the actual values. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टॉपिक का जो है वो डेटा याद करके एग्ज़ाम में जाना है. इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आप जितना आपकी अंदाज़ा के हिसाब से जो लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज दिस इज़ नॉट अ GK एग्ज़ाम. ये जनरल नॉलेज का क्विज़ नहीं है. इसीलिए आप जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा प्रेजेंट करना चाहते हो जस्ट मेक श्योर दैट इट इज़ एज अप्रॉक्सीमेट एज पॉसिबल. तो अप्रॉक्सीमेट डेटा आप डालोगे तो भी चलेगा. एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जिसमें आपको इस प्रकार से स्टैटिस्टिकल डेटा लिखने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए एग्जामिनर आपको छोटे छोटे से पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन देंगे. तो एग्जामिनर बहुत बार जो है वो आपको एक एक कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइफन के साथ छोटे छोटे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे जिसमें स्टैटिस्टिकल डेटा पे मेंशन किया होगा. So here you don't have to worry too much about this particular point here. Statistical data के बारे में आपको statistical data अगर देने की ज़रूरत पड़ती है किसी क्वेश्चन में, किसी आंसर में, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा की ज़रूरत होती है द एग्जामिनर विल मेंशन इट इन द क्वेश्चन. सो द एग्जामिनर इज गोइंग टू मेंशन ऑल द रिक्वायर्ड स्टैटिस्टिकल डेटा एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन. जो भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा है जो आपको लगता है आंसर में ज़रूरी है, वो सब क्वेश्चन में एग्जामिनर बुलेट पॉइंट्स के रूप में आपको प्रेजेंट करेंगे. You just have to take those points and use them and incorporate them into your article. So here it's important that you should be aware of the topics. आपको basic knowledge तो होना चाहिए हर topic का, but आपको in depth knowledge की ज़रूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि हर question में जहाँ भी आपको इस प्रकार से statistical data या फिर ऐसा कोई ज़्यादा technical information देना पड़ेगा, उसमें bullet points में examiner points mention करेंगे. आपको सिर्फ उनको आपके आर्टिकल में इनकॉर्पोरेट करना है. सो एवरी क्वेश्चन विच नीड्स टेक्निकल स्टैटिस्टिकल डेटा, द इंफॉर्मेशन विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चंस.
The last part here is the conclusion. So the conclusion एक आखिरी पैराग्राफ होगा. So यहाँ पे आप you can take one thing for granted in any article writing और speech writing, जो भी आप लिख रहे हो उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, 2 पैराग्राफ्स आपके फिक्स्ड हैं. So this is something which you need to remember. The first one is your introduction. Introduction का एक पैराग्राफ 100% फिक्स्ड होना चाहिए और एक कंक्लूजन का पैराग्राफ वो 100% फिक्स्ड होना चाहिए. So 2 पैराग्राफ्स आपके किसी भी आर्टिकल में फिक्स्ड होते हैं, एक इंट्रोडक्शन होता है और एक कंक्लूजन होता है. और एक आर्टिकल में द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ टाइटल. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? आप एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन, एक अच्छा टाइटल और कंक्लूजन अगर भी अच्छे से दे पाते हो तो यू विल ईजीली स्कोर 3.5 मार्क्स आउट ऑफ 10. आपको 10 मार्क्स से 3.5 मार्क्स बहुत ईजीली मिल जाएंगे बाय जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दीज 3 पार्ट्स. और यहाँ पे आप जितना अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो ये सेंटेंसेस को, किस प्रकार से आप उन सेंटेंसेस को सही ऑर्डर में लिख सकते हो, उसके बेसिस पे आपको ये 3 मार्क्स मिलेंगे कंटेंट के बेसिस पे. सो कंटेंट क्या है? जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स आप दे रहे हो, किस प्रकार का लॉजिक बना रहे हो. सो बेसिकली इट्स very important that you connect all these thoughts using a lot of logic. तो illogical नहीं होना चाहिए आपका body. So when I say illogical, it basically means having no relation with each other. तो एक point और दूसरे point में कोई relation ही ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. Your points should be relevant to each other. So as long as that happens, these 3 marks are also very easy to obtain. So basically most of your marks are fixed in this particular article. Let's move to the next part of this. ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर. तो अगर आप कोई भी ग्रामेटिकल एरर्स करते हो या कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो तो यू विल लूज 1.5 मार्क्स फॉर इट. So basically your grammar and spelling errors will make you lose 1.5 marks. तो अगर आप कोई भी spelling mistake नहीं करते हो और आपका grammar सही रहेगा तो ये 1.5 mark भी आपका कहीं नहीं जाएगा. Now coming to this part of spelling errors. How do I avoid spelling errors? Very simple. Avoid using words जो आप confident नहीं हो. ऐसा कोई भी वर्ड जिसके स्पेलिंग के बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, इमीडिएटली उस वर्ड के बदले में उसका सिनोनिम यूज़ कर लीजिए. सिनोनिम का मतलब होता है दूसरा सिमिलर मीनिंग वर्ड, एक और वर्ड जिसका भी मीनिंग सेम हो. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ वर्ड लाइक गुड, इंस्टेड ऑफ गुड यू कैन ऑल्सो यूज़ काइंड मे बी. तो इस प्रकार से आपको अगर किसी एक वर्ड के बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, स्पेलिंग के बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप तुरंत दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हो. तो इस प्रकार से आप स्पेलिंग एरर्स भी अवॉइड कर सकते हो. And also improving your vocabulary will help you in avoiding spelling errors and any other errors that you can make in your writing. So overall structure of the article, following the overall format of the article, 1 mark. Meaning अगर आप इसी format में नहीं लिखते हो article को, for example आप title भूल गए हो तो आपका 1 mark नहीं जाएगा बल्कि 2 marks जाएंगे. Why? Because you have not followed the format of your writing. So format of writing के लिए सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से आपको arrange करने के लिए आपको 1 mark मिलेगा एग्ज़ाम में. तो कंटेंट के लिए ये 3 मार्क्स है, बट अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी टाइटल देने के लिए और इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, कंक्लूजन लिखने के लिए आपको 3.5 मार्क्स मिल रहे हैं. और इस फॉर्मेट में इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसी एक स्टेप बाय स्टेप आप लिखोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा उसका. सो इफ़ यू हैव सीन 4.5 मार्क्स are very easy for you to get in your examination. Out of 10, 4.5 marks बहुत easy है. बाकी मार्क्स जो है वो आप इसमें by ensuring to write good connecting sentences और अच्छे एक logical reasoning के साथ आप लिखोगे तो ये मार्क्स भी आपको बहुत easily मिल जाएंगे. So this is the basic format of writing an article. So what is the format of writing an article? The first is your title. The second is introduction. The third is the body of the article. So body of the article will comprise 2 to 3 paragraphs. Body of the article में
2 to 3 पैराग्राफ्स आपको लिखना पड़ेगा और एक कंक्लूजन रहेगा. सो योर आर्टिकल बेसिकली इज गोइंग टू हैव 4 to 5 पैराग्राफ्स, नथिंग लेस देन 4, नॉट मोर देन 4, मोर देन 5. आपको 5 के ऊपर पैराग्राफ्स नहीं बनाना है. उसी प्रकार से आपको 4 से कम पैराग्राफ्स में भी आंसर नहीं लिखना है. सो दिस अरेंजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट कि एक इंट्रोडक्शन कितना लंबा होना चाहिए या एक कंक्लूजन में कितने वर्ड्स होने चाहिए. सो दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल. प्लीज़ रिमेंबर, इंट्रोडक्शन कैन बी एज स्मॉल एज 3 sentences. A conclusion can be as small as 2 to 3 sentences. तो ये पैराग्राफ्स में आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. एक इंट्रोडक्शन बहुत छोटा हो सकता है, एक कंक्लूजन भी बहुत छोटा हो सकता है, बट आपको किस में सबसे ज़्यादा कंटेंट भरना है? बॉडी ऑफ द आर्टिकल में. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. सो द फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल, हम लोग अभी यहाँ पे फॉर्मेट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अभी हम यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे. ओके, टाइटल. सो बेसिकली योर टाइटल इज a short caption for what is it that I'm going to discuss in the article. मैं आर्टिकल में क्या डिस्कस करने वाली हूँ या करने जा रहा हूँ, इसके बेसिस पे सबसे छोटा जो एक फ्रेज जो इम्पॉर्टेंट होता है उस आर्टिकल का, उसको आप कैप्शन के तौर पे देते हो, उसको टाइटल बोलते हैं. सो लेट्स लुक एट दिस एज एन एग्जाम्पल. सो हाउ टू चूज अ टाइटल. The title should represent the main idea of the article. The main idea is the topic of the article or issue being discussed in the article. For example, जैसे हमने इसके पहले डिस्कस किया IPL का कैंसिलेशन के बारे में. तो अगर आपको एग्जामिनर पूछता है IPL got cancelled, how do you feel about it? So for this topic, your title is going to be cancellation of IPL due to COVID-19. So, or how has COVID-19 impacted our IPL season, or the government's decision on cancelling IPL season or IPL games. So basically ये जो आपका टाइटल है उससे हमको क्या पता चल रहा है कि आपका टॉपिक क्या होने वाला है. So basically your title will help us or help the reader understand what is it that you want to talk about. So basically your title should be a very short, crisp introduction or a summary or of the main idea or purpose of the passage. तो जो भी आप आर्टिकल लिख रहे हो, ये टाइटल जो है वो उस पर्टिकुलर आर्टिकल का मेन आइडिया होगा और उससे हमको पता चल जाएगा क्या वो आर्टिकल हमको बताना चाह रहा है. सो यू रीड न्यूज़पेपर, so you have read newspapers, you read newspapers regularly. So newspapers, you must have seen the very first page has very big headlines. Headlines जो होते हैं वो कुछ नहीं, टाइटल्स होते हैं उस आर्टिकल का. तो जो भी हेडलाइन, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ साइक्लोन बिल्डिंग इन द बे ऑफ बंगाल, तो इस आर्टिकल में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? साइक्लोन कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कैसे इम्पैक्ट करेगा हमारे इकोनॉमी को और बाकी चीज़ों को. सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर, बाय रीडिंग द टाइटल वी कैन गेस व्हाट इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो जब आपको टाइटल देखोगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या डिस्कस किया जा रहा है. सो बेसिकली योर टाइटल इज गोइंग टू बी अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन योर आर्टिकल. So let's look at this example here. Shifting habitats. Habitat का मतलब क्या होता है? कोई भी एक जानवर एक पर्टिकुलर प्लेस में रहता है तो उसको उसका हैबिटेट बोलते हैं. ह्यूमन बींग्स, फॉर ह्यूमन बींग्स वी डू नॉट यूज द वर्ड हैबिटेट. वी डू नॉट यूज द वर्ड हैबिटेट फॉर ह्यूमन बींग्स. व्हाट वर्ड डू वी यूज फॉर ह्यूमन बींग्स? हाउसेस, होम्स. सो इसी प्रकार से अगर हम लोग हैबिटेट वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि हैबिटेट लिखा हुआ है, सो दिस इज अबाउट बर्ड्स और एनिमल्स. एंड शिफ्टिंग का मतलब होता है चेंजिंग, anything which is not constant from one to another. So the moment you see this title shifting habitats, what can we guess about this article? इस article के बारे में हम क्या guess कर सकते हैं कि ये article जो है it's going to talk about how animals and birds are changing their places of habitat, और उनकी रहने की जगह
एनिमल्स और बर्ड्स किस प्रकार से चेंज कर रहे हैं और किन वजह से चेंज कर रहे हैं, ये हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? द टाइटल नीड्स टू बी समथिंग विच हेल्प्स अस इन गेसिंग व्हाट इज द आर्टिकल गोइंग टू टॉक अबाउट. सो जो भी टाइटल आप चूज़ करोगे उसको इस प्रकार से चूज़ करना चाहिए कि वो टाइटल पढ़ते ही साथ एग्जामिनर को और रीडर को ये समझ में आ जाए कि आप आर्टिकल में कहना क्या चाहते हो. सो व्हाट इज़ द पर्पस और द मेन आइडिया और द टॉपिक ऑफ द आर्टिकल, दैट शुड बी योर टाइटल. Okay. So the second part is your introduction. So let's look at an example. हमने इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर दिया है. तो इंट्रोडक्शन में एक तो आपको एग्जामिनर जो क्वेश्चन में पूछेंगे दैट यू आर सो एंड सो पर्सन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट और व्हाट डू यू फील अबाउट इट और गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट इट. तो आपको बोलना पड़ेगा दैट आई एम सो एंड सो वर्किंग एज अ CEO. दिस इज एन एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है. तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा. और यू कैन से दैट आई एम ABC who is a social activist or I am ABC who is a climate activist. So इस प्रकार से जो भी टॉपिक आपको एग्जामिनर पूछेगा और जो भी आपको कैरेक्टर अज्यूम करना पड़ेगा एग्जामिनर के क्वेश्चन के बेसिस पे, यू नीड टू गिव अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट दैट इन द फर्स्ट सेंटेंस. सो आपका फर्स्ट सेंटेंस इंट्रोडक्शन का होता है क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ वॉट एवर कैरेक्टर यू आर टेकिंग इन टू. तो जो भी कैरेक्टर आपके एग्जामिनर आपको लेने के लिए बताते हैं उस एक क्वेश्चन में, उस कैरेक्टर के बारे में एक सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा आपके इंट्रोडक्शन में. उसके आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे. नाउ लेट्स लुक एट दिस इंट्रोडक्शन एंड अंडरस्टैंड दिस. तो ये जो आर्टिकल का टाइटल है, हमने इसी के बेसिस पे ये एग्जाम्पल यहाँ पे चूज किया है. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन गिवन फॉर द आर्टिकल शिफ्टिंग हैबिटेट्स. लेट्स लुक एट दिस सेंटेंस हियर. Species, both plants and animals, are being affected by climate change and as they reach their ecological limit. Ecological limit का मतलब क्या होता है? Ecological is how they live along with other species. So ecology का मतलब basically ये होता है that I as a particular species, when I coexist with other species, that becomes an ecology. So ecology is एक जानवर या एक इंसान या एक प्रकार का जानवर या बर्ड जो है वो बाकी जानवरों और बर्ड्स के साथ किस प्रकार से कोएग्जिस्ट करता है. सो उसको हम इकोलॉजिकल लिमिट. तो इकोलॉजिकल लिमिट रीच होना मतलब एक पॉइंट के बाद अब वो एनिमल या बर्ड जो है उस एनवायरनमेंट में नहीं सर्वाइव कर सकता है. They need to shift their habitat to survive. So यहाँ पे जैसे हमने देखा वो एक लिमिट क्रॉस होने के बाद, एक पर्टिकुलर लिमिट टच होने के बाद एक प्रकार का जानवर जो है वो दूसरे प्रकार के जानवर के साथ नहीं रह सकता है. तो इसके लिए I'll give you another small example. तो as you know that pigeons are basically those creatures which try and live in other birds nest. और अगर कोई और बर्ड है तो उसके नेस्ट को थोड़ा सा वो डिस्टर्ब कर देते हैं और या फिर उनके एग्स जो है वो उन नेस्ट में दे देते हैं. So basically because of this what is happening is even crows do the same, and because of all of these birds increasing, what is basically happening is that one particular migratory bird जो है वो माइग्रेशन नहीं कर पा रहा है. फॉर एग्जाम्पल कुकू इज़ नॉट एबल टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर बर्ड का स्पीशीज़ जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है. सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट ही मीन्स बाय इकोलॉजिकल लिमिट. एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ के साथ नहीं रह सकता है. फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हंटिंग ऑफ शार्क्स, the रे एक प्रकार का फिश होता है. द रे पॉपुलेशन इन द सी इज़ इंक्रीजिंग. उससे क्या होगा, रेज इंक्रीज हो जाएंगे तो रेस जो जिन फिश को खाते हैं उन फिश का जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाता है. ये पूरा एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है इकोलॉजी में. सो दिस इज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट हियर. सो वंस the climate change has reached their ecological limit, they need to shift their habitat to survive. Climate is not their only driver of habitat shifts. Other human activities such as urban or infrastructure development
and more broadly changing land uses may also drive shifts in habitat. तो ये फर्स्ट सेंटेंस जो है ये एक इंट्रोडक्शन है, तो ये पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन है. तो इस पैराग्राफ से हमने क्या किया, हमने एक्सप्लेन किया कि ये हैबिटेट शिफ्ट क्यों हो रहा है और ये हैबिटेट शिफ्ट कब होता है. सो बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस एग्जाम्पल is to elaborate or talk about or introduce the basic idea that we are going to discuss in this passage. तो ये article में what is it that we are going to discuss? We are going to discuss what is the ecological limit. We are going to give examples of plants and animals in the body. We are also going to discuss about what urban and infrastructure development is causing the disturbance. We are going to discuss about land uses, how it is impacting the habitat shift. So basically what we are going to do here is a particular habitat shift which is happening in this particular situation. We understand that all of this is happening because of the human activities and other ecological or climatic problems. तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या किया है, हम बॉडी ऑफ द पैसेज में और बॉडी ऑफ द आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, किस चीज़ों के बारे में एग्जाम्पल्स देने वाले हैं, इस चीज़ को हमने बहुत ब्रीफली इंट्रोडक्शन में डाल दिया है. सो वी हैव अंडरस्टूड टू थिंग्स हियर. फर्स्ट थिंग, जो भी टॉपिक है उसका बहुत शॉर्ट ब्रीफ कैप्शन जो है वो आपका टाइटल होगा. तो टाइटल पढ़ते ही साथ आपको ये समझ जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं या बात करने वाले हैं. सेकेंड कम्स आर इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें हमको ये सब बातें करना है जो हम इलैबोरेट करने वाले हैं. इलैबोरेट का मतलब होता है वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट, जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने वाले हैं बॉडी ऑफ द आर्टिकल में. सो आवर इंट्रोडक्शन इज गोइंग टू बी लाइक अ ट्रेलर, जैसे मूवी का एक ट्रेलर होता है पूरे मूवी के पहले. सो योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इज बेसिकली लाइक योर मूवी ट्रेलर. उसमें हम सब चीज़ जो बॉडी ऑफ द आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं उनको छोटे छोटे पॉइंट्स में बहुत ब्रीफली एक बार डाल देते हैं. सो योर इंट्रोडक्शन इज़ वेरी ईजी. All you have to do is just think about all the points that you want to put in your article. तो आपको ये जो है वो बहुत easy हो जाएगा क्योंकि आपके एग्जाम में examiner will already give you what are the points that you need to put in the article. तो आपको points already दिए गए हैं, आपको सिर्फ वो points को लेना है और सही प्रकार से आपको अरेंज करना है उन पॉइंट्स को. सो हियर योर टाइटल विल बी दैट एंड योर इंट्रोडक्शन इज गोइंग टू बी अ ब्रीफ ट्रेलर ऑफ वॉट एवर यू आर गोइंग टू डिस्कस इन द बॉडी ऑफ द आर्टिकल. सो इट्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक और द पर्पस ऑफ द टॉपिक. नेक्स्ट पार्ट, बॉडी ऑफ द आर्टिकल. सो बॉडी ऑफ द आर्टिकल में क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने देखा है कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेट्रा, इकोलॉजिकल लिमिट. तो इन बारे में हम लोग इलैबोरेट करके ज़्यादा इंफॉर्मेशन देकर पैराग्राफ्स फॉर्म करने वाले हैं बॉडी ऑफ द आर्टिकल में. सो वी आर गोइंग टू गिव एविडेंस, statistical data, supporting statements, opposing statements and examples. So again coming back to this, you are as a student are expected to have a general knowledge about things, but आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में टेक्निकल नॉलेज रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो ये स्टैटिस्टिकल डेटा है और ये सब जो पॉइंट्स है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में एग्जामिनर देंगे. सो यू जस्ट हैव टू यूज़ दैट इन ऑर्डर टू organize your body and organize your sentences well. Let's look at examples now. Presently, there has been a strong focus on the positives of range shifts ensuring species survival. However, there are also negative impacts of climate-driven range shifts. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे पहले सेंटेंस में हमने जो इंट्रोडक्शन किया है क्लाइमेट इम्पैक्टिंग द शिफ्ट इन द हैबिटेट, तो उसके बारे में हम यहाँ पे
पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को इलैबोरेट करके बात कर रहे हैं. सो इन वन पैराग्राफ वी आर गोइंग टू इलैबोरेट एंड गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. Let's look at the next example. Individual species tolerance to environmental change will determine their need to shift and to which extent. For example, a European-wide study of bird and butterfly communities spanning from 1990 to 2008 showed that butterflies had moved further northward in that time than bird species. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक particular point को हम discuss कर रहे हैं. Individual species tolerance to environmental change will determine their need to shift. For example, and this example is being discussed. तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर ऐसे इस प्रकार के कोई पॉइंट्स रहते हैं आपको आर्टिकल में लिखना पड़ेगा, तो आपके एग्जामिनर जो है वो आपको पॉइंट्स में देंगे. फॉर एग्जाम्पल, द एग्जामिनर इन दैट क्वेश्चन might say individuals species tolerance to environmental change, their need to shift. European-wide study of bird and butterfly communities showed that butterflies move further northward. So ये अलग अलग से देंगे, जंबल करके देंगे, आपको उनको करेक्ट तरीके से अरेंज करना है एंड यू नीड टू नो वेयर टू प्लेस देम एंड हाउ टू प्लेस देम. सो सिर्फ और सिर्फ आपको प्लेसमेंट की के बारे में सोचना है और किस प्रकार से आपको पैराग्राफ्स को चेंज करना है. बट अदर देन दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द स्टैटिस्टिकल डेटा व्हाइल राइटिंग एन आर्टिकल. Conclusion. Examples. So here a conclusion, as we discussed, a conclusion is going to have a summary of the entire discussion. तो एक conclusion जो है वो हमारा एक summary होगा. What do you mean by summary? As we have done in the earlier sessions when we discussed other topics and lessons, उसमें भी हमने ये word summary देखा है. Summary का मतलब होता है brief, to give a brief idea of whatever the content is saying. For example, अगर आप पूरा 1000 words का कोई content है, उस 1000 words में से जो भी important points है उनको आप एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, उसको एक समरी बोलते हैं. सो समरी बेसिकली विल बी अबाउट 30% ऑफ योर मेन आर्टिकल. तो आपको कंक्लूजन में जो भी पॉइंट्स आपने डिस्कस किया है आर्टिकल में, उनको धीरे धीरे से या छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको दोबारा रिपीट करना है कंक्लूजन में. और अगर आप कोई ओपिनियन या कोई एक स्टैंड लेते हो उस पर्टिकुलर आर्टिकल में, तो उस पर्टिकुलर ओपिनियन और स्टैंड को रिपीट करना पड़ेगा in your conclusion. But what you need to remember is you can't use the same words, same sentences, same words जो आपने पूरे आर्टिकल में यूज़ किया. You cannot use the same words and sentences. आपको थोड़ा सा चेंज कर कर और उतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ ब्रीफली आपको पूरे कंटेंट को जो है वो समराइज करके, I'll give you a simple example. Based on the above facts and information, we can conclude, or I can conclude that this is the reason why the government has decided to cancel IPL games. Or because people cannot maintain social distancing, it is important to cancel any kind of public games. सो बेसिकली ये जो सेंटेंसेस है ये हमारे पूरे आर्टिकल को जो है वो कंसाइज फॉर्म में एक समराइज कर रहे हैं और लिख रहे हैं. सो बेसिकली योर कंक्लूजन शुड बी ईदर अ समरी और इट विल बी अ रिपीटिशन ऑफ द स्टैंड और द आइडिया दैट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द पैसेज. बट सिर्फ ये याद रखना है कि उतना इलेबोरेटली, उतने लंबे पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. आपको बहुत छोटा सा एक कंक्लूजन लिखना है उसके बेसिस पे. सो एग्जाम्पल हियर विल बी, there will be winners and losers as species seek out their niche, but management needs to be adaptive and dynamic to the constant change to provide the best protections for biodiversity as a whole. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंक्लूजन में ऑथर जो है या फिर जो भी लिख रहे हैं, राइटर जो है इस आर्टिकल का, he is giving a suggestion. He is saying there will be winners and losers as species seek out their niche. मतलब हर एक species जो है अपने survival के लिए fight करता है. That is what it means by this part, seek out their niche. तो जब एक species survive करता है तो क्या होगा, उसके वजह से दूसरे species को
नीचे जाना ही पड़ेगा. So basically that's what he is talking about here. But management needs to be adaptive and dynamic to the constant change to provide the best protections for biodiversity as a whole. Biodiversity or ecology is similar in meaning. So biodiversity भी coexistence है. The difference is in ecology what we are talking about is species to species coexistence. Biodiversity की जब बात करते हैं हम लोग land, soil, the pollutants in the soil, atmosphere, सब चीज़ include कर देते हैं. That's the only difference here. So what is the author doing in this, what is the writer doing in this sentence? पूरे आर्टिकल को कंक्लूड कर दे रहे हैं. सो इस एक आर्टिकल के बारे में हम सोचें तो सबसे पहले टाइटल में हमको पता चला है शिफ्टिंग हैबिटेट्स, व्हाट द टॉपिक इज, व्हाट द ऑथर इज गोइंग टू टॉक अबाउट. फिर इंट्रोडक्शन में हमने देखा है क्या क्या प्रॉब्लम्स ऑथर या राइटर उस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं. फिर हमने बॉडी में देखा है किस प्रकार से हर एक वो पॉइंट के लिए एग्जाम्पल्स के साथ ऑथर जो है इलाबोरेट करके लिख रहे हैं बॉडी ऑफ द आर्टिकल. लास्ट में कंक्लूजन में ऑथर ने क्या किया है, एक सिंपल सा सजेशन दिया है कि इफ़ यू वांट टू help nature or environment, or if you want to stop this shifting of habitats, then the management needs a adaptive का मतलब है adjusting, easily adjust करने वाला, adjusting and dynamic to the constant change to provide best protection for the whole biodiversity. So this is a conclusion here. Let's look at another conclusion. तो ये conclusion जो है वो इस आर्टिकल का नहीं है, ये किसी और आर्टिकल का है, बट हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू पे ये भी एक कंक्लूजन यहाँ पे दिया है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. ऑस्ट्रेलिया इज सर्टनली डिजर्विंग ऑफ कंपैशन एंड सपोर्ट. कंपैशन का मतलब होता है एम्पथी. एम्पथी का मतलब होता है टू फील वॉट अदर पर्सन इज फीलिंग. तो किसी और इंसान अभी इस वक्त किस चीज़ से गुजर रहा है उस चीज़ को समझना इज कंपैशन. Compassion and support in the face of the fires. At the same time, it is worthwhile to pause and acknowledge the other places at the front lines of climate change and to include their stories in the collective motivation for climate action. तो यहाँ पे क्या कर रहा है ऑथर, और द राइटर इज सेइंग दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के प्रति हमको एम्पथी भी दिखाना है, कंपैशन भी दिखाना है, पर ये भी ज़रूरी है कि इन चीज़ों को होने से कैसे रोका जाए. तो यहाँ पे किस बारे में बात करें, फॉरेस्ट फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया. So what is the writer saying here? That it is very important that we feel empathetic towards Australia, we feel compassionate towards Australia, but it is also very important कि हम उसका root cause समझें और उस root cause को address करें. So basically this also is a conclusion. So what is the conclusion doing it? It's summarizing the whole article. So what does the conclusion have? It has a summary or a suggestion or a repetition of your opinion. Good evening, Girija. So do you have any doubts in any of this so far that we have discussed? Okay, let's move forward. So what are the different styles of writing? तो जब आर्टिकल लिखने के लिए एग्जामिनर बताते हैं आपको, तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टाइल ऑफ योर राइटिंग. सो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन यू नीड टू चूज योर स्टाइल ऑफ राइटिंग. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी मीन बाय स्टाइल्स ऑफ राइटिंग. स्टाइल्स ऑफ राइटिंग का मतलब क्या है ये समझते हैं अभी. Expository, the word is very fancy but the meaning is very simple actually. उसका मतलब होता है informative या factual. So जब भी हम facts देते हैं उस चीज़ को expository passage या article बोलते हैं. So any article, for example the front page of your newspaper is the best example for this. The front page of your newspaper does not have any advertisements, it does not have any opinions. What it does is just give you what has happened the previous day. तो जो फर्स्ट पेज ऑफ न्यूज़पेपर रहता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता है क्या हुआ है पहले दिन, या आज के दिन क्या होने वाला है, या कल क्या होने वाला है. So basically that exactly is an expository article. So whenever the examiner gives you facts,
जब एग्जामिनर आपको पॉइंट्स में क्वेश्चन में फैक्ट्स देते हैं, फैक्ट्स कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, एनी इवेंट, कोई भी इवेंट है, सिचुएशन है, या कोई एक चीज़ जो होने वाला है, या बहुत सारे डेट्स, बहुत सारा स्टैटिस्टिकल डेटा, बहुत सारे ईयर्स मेंशन किए जाएंगे, तो इस प्रकार से जब इंफॉर्मेशन रहता है तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट्स एन इन्फॉर्मेटिव और अ फैक्चुअल आर्टिकल दैट यू नीड टू राइट. डिस्क्रिप्टिव. सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिप्टिव? कोई भी चीज़ को आप एक्सप्लेन कर रहे हो. So if you take a particular topic and you explain that topic, that is called a descriptive article. तो अगर आपको एग्जामिनर जो है जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसमें सिर्फ 2-3 पॉइंट्स रहेंगे और आपको उस 2-3 पॉइंट्स को कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन बनाना है या एक आर्टिकल लिखना है, तो वो डिस्क्रिप्टिव होता है. I'll give you a simple example. Let's say हम एक फेरी टेल की स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं. So I can simply give you a small story, let's say, of Sleeping Beauty. So Sleeping Beauty जो एक फेरी टेल है उसका एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ. So there was a young princess who pricked her finger on a thorn and she went into a sleep. तो ये स्लीपिंग ब्यूटी स्टोरी में ऐसा होता है कि एक यंग प्रिंसेस है जो अपने फिंगर को जो है एक सुई पे प्रिक कर लेती है और जिसकी वजह से वो नींद में चले जाती है. सो दिस इज़ द बेसिक स्टोरी. Now if I want to make it descriptive, let's say I want to make this story descriptive. Descriptive meaning मैं जितना जितना इलेबोरेट करके, जितना एक्सप्लेन करके किसी चीज़ को समझाऊंगी या फिर लिखूंगी उसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं. सो हियर आई कैन से there was a very beautiful young princess with lustrous shiny long hair who pricked her delicate finger on a cunning thorn, so a cunning thorn, and went into a very deep पॉइजनस स्लीप. तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं स्टोरी को नरेट कर रही हूँ एंड एट द सेम टाइम मैं इसमें बहुत सारा डिस्क्रिप्शन डाल रही हूँ और इससे क्या हो रहा है, आपका इंटरेस्ट इंक्रीज होगा. तो सिंपली व्हेन आई से दैट देयर वाज अ यंग प्रिंसेस हु pricked her hand or who pricked her hand on a thorn and went into sleep, इसमें और there was a beautiful young princess with shiny long hair who pricked her delicate finger on a thorn and went into a deep poisonous sleep. So इसमें इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस ये है कि एक डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस या डिस्क्रिप्टिव आइडिया जो है वो रीडर का अटेंशन ग्रैब करके रखता है. So when I want to grab the attention of the reader, when I want to ensure that the reader takes interest in what I write, I make my writing descriptive. So descriptive writing तब होता है जब हमारा मेन पर्पस होता है कि हम रीडर का जो अटेंशन है उसको बनाए रखे, रीडर को बोर न कर दे अपने आर्टिकल से. सो जितना हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जितने एग्जाम्पल ज़्यादा देते हैं, जितना हम लोग किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उस चीज़ को जो है हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं. सो डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल्स आर दीज. Then you have persuasive article. So what do you mean by persuasive article? इसमें speech भी हो सकता है. So it's not necessarily an article. It can be a speech also. So persuasive का मतलब होता है convince करना. Convince का मतलब होता है किसी का मन बदल देना आपकी बातों से या आपके सोच से. So that is what is persuasive. So you can have questions in the exam where the examiner might ask you that you have this particular belief, you think that it is important to study for examinations well ahead in time and not do last minute preparation. तो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको दिया गया है, तो आपको लेट्स से आपको कन्विंस करना है स्पीच के तौर पे आपके पूरे स्कूल को. तो यू हैव टू कन्विंस योर एंटायर स्कूल दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम्स from the beginning of the year rather than just by hearting the day before the exam. तो इसमें क्या हो रहा है, आपको एक आर्टिकल या स्पीच इस प्रकार से डिज़ाइन करना है कि आपके पूरे जो स्कूल के बच्चे हैं वो आपके बात से कन्विंस हो जाए. सो व्हाट डू यू डू देयर, व्हाट यू नीड टू डू इज़ गिव इन्फॉर्मेशन एंड गिव देम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, आप जब किसी को कन्विंस कर रहे हो तो आपको ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि क्यों ये चीज़ सही है या क्यों ये चीज़ गलत है. तो आप जितना ज़्यादा पॉइंट्स दोगे उसमें, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोगे, जितने सारे आप एग्जाम्पल्स दोगे,
क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस का, तो आपके चांसेस ऑफ कन्विंसिंग द पर्सन विल बिकम हायर. सो इफ़ यू वांट टू इंश्योर दैट यू हैव गुड कंटेंट, अगर आपका कंटेंट अच्छा हो, अगर ये आप चाहते हो किसी भी क्वेश्चन के आंसर में, तो कीप दैट इन माइंड. द लास्ट इज नरेटिव. तो एक नरेटिव जो है वो एक ऑथर जो है अपने एक एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं सबके साथ. दैट इज़ अ नरेटिव. सो अ नरेटिव आर्टिकल इज़ लाइक अ डायरी एंट्री. तो जैसे आपके साथ कुछ हुआ है एक पर्टिकुलर दिन, या आप अपने कोई एक अच्छे एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हो सभी के साथ, और यू वांट टू शेयर अ पर्टिकुलर thought that you have about life, for example. So all that comes under narrative. So narrative way of writing is basically to try and write something that shows your own experience. तो आपका खुद का जब एक्सपीरियंस आप शेयर करते हो उसको नरेटिव बोलते हैं. तो आपके एग्जाम में एग्जामिनर माइट ऑल्सो गिव यू अ क्वेश्चन लाइक, यू आर राम, you have won the Nobel Peace Prize, write an article on how you feel about it. तो इसमें आप क्या कर रहे हो, यू आर नरेटिंग वॉट यू फील अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट और सिचुएशन. सो एक नरेटिव आर्टिकल ये होता है कि आप आपके एक एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हो. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ और स्टाइल्स ऑफ राइटिंग. तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है एग्जाम में, क्वेश्चन में, उसके बेसिस पे यू नीड टू डिसाइड व्हाट शुड बी योर स्टाइल ऑफ राइटिंग. एनी डाउट्स इन दिस? एनी डाउट्स हियर? Okay, I see no doubts in this, so we'll proceed now. Expository, informative और factual. तो इसके बारे में एक छोटा सा brief discussion कर लेते हैं. The purpose is to give information or present facts to the readers. No opinions are mentioned in this type of an article. Let's look at examples now. Chemicals in ancient ocean rocks hint that 3.2 billion years ago, the surface of a baby Earth was continent-free and covered by a global ocean. तो ये क्या है? ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है. इसमें ना ऑथर ने उनका ओपिनियन लिखा है, ना इसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या कोई डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ना ही इसमें कोई एग्जाम्पल्स या एक्सप्लेनेशन है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिंपल फैक्ट. सो व्हाट इज एन एक्सपोजिटरी इन्फॉर्मेटिव फैक्चुअल आर्टिकल? जिसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, और इसमें कोई ओपिनियन नहीं मेंशन किया जाएगा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा. सो दिस इज अ फैक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. हाई अल्कोहल कंटेंट इंश्योर्स दैट DIY. व्हाट इज DIY? आप बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे जगह पे सुने होंगे. DIY का मतलब होता है डू इट योरसेल्फ. So DIY hand sanitizers will effectively reduce coronavirus when soap and water aren't available. तो जब पानी नहीं रहेगा तो ये hand sanitizers आपको कोरोना वायरस से बचाएंगे. So basically what is the sentence again doing? It's just a fact. सिर्फ और सिर्फ आपको एक piece of information provide कर रहा है ये particular sentence. Descriptive. The purpose here is to paint a word picture. What do you mean by painting a word picture? आप बिना एक एक्चुअल पेंटिंग के आप वर्ड्स के थ्रू एक तस्वीर बना रहे हो. सो यू बेसिकली यू यूजिंग वर्ड्स इन ऑर्डर टू मेक द रीडर इमेजिन व्हाट इज गोइंग ऑन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से कोई एक स्टोरी में जो protagonist or the hero is there, that person is trying to do good in the society. तो उस समय में जिस प्रकार से जो वो प्रोटोगोनिस्ट है जो हार्डवर्क करता है उसके बारे में जब हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, और फॉर एग्जांपल द प्रोटोगोनिस्ट गोज़ टू विजिट द माउंटेन्स, तो किस प्रकार से द कोल्ड ब्रीज हिट द the person's face, and then he realized that he was actually in a mountain, and he could see the snow-capped mountains. He could hear the owls hooting in the distance.
सो ये इस प्रकार से जो छोटे छोटे सेंटेंसेस और जो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हम देते हैं उसको वर्ड पिक्चर बोलते हैं. सो बेसिकली दैट इज व्हाट यू नीड टू डू इन अ डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल. सो अ डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल uses a lot of information to describe how the author or the writer or a particular situation feels like. In a descriptive article, you give as many examples as you can and as much elaboration का मतलब होता है जितना ज़्यादा information दे सकते हो. Elaborate and explain details of the topic. Let's look at an example here. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who could have a wife or children. So this is a small paragraph that I have picked up from your Hornbill chapter 1 lesson, a portrait of the lady. So basically उस chapter से हमने ये particular paragraph लिया है जिसमें जो author है वो अपने grandfather को describe कर रहे हैं. So if you can see the grandfather, you have never seen the grandfather, I have never seen the grandfather, पर अपने mind में ये पढ़कर हम एक तस्वीर इमेजिन कर सकते हैं. हम उस ऑथर के ग्रैंडफादर को अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं. उनकी सफ़ेद दाढ़ी थी, वो एक टर्बन पहने थे और वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थे और उनके कपड़े बहुत लूज थे. सो व्हेन यू लुक एट ऑल ऑफ दीज, it is very easy for us to imagine what is it that the author wants to convey. So एक descriptive article में purpose और main reason क्या purpose क्या होता है कि हम एक वर्ड पिक्चर दे ताकि जो भी रीडर है वो इमेजिन कर सकते हैं हम क्या बोलना चाहते हैं. Persuasive, the purpose is to convince the reader to agree with your point of view or opinion. In articles like these, you must include facts in support of your opinion or perspective. तो ये persuasive जो भी articles आप लिखते हो उसमें याद रखना पड़ेगा कि जो भी opinion आपका है वो for हो या against the topic हो, आपको हर चीज़ के लिए examples देना बहुत ज़रूरी है और facts का देना बहुत ज़रूरी है. अगर मैं इस चीज़ को सही मानती हूँ तो क्यों मानती हूँ और अगर इस चीज़ को मैं गलत मानती हूँ तो क्यों मानती हूँ. Example. Headphones are packed with technology. When an audio current passes through the device's voice coil, it creates an alternating magnetic field that moves a stiff light diaphragm. Diaphragm is a cover. It's a layer. This produces sound. But sound thrives. Thrives मानी flourishes. बढ़ता है. Grow करता है. Thrives amid other sounds. And protecting a kid's hearing is just as important as protecting their brains. The coil magnet diaphragm magic that hits our eardrums not only disturbs our hearing but also causes long-term brain damage. तो यहाँ पे author का point of view क्या है कि ईयरफोन्स जो है वो ज़्यादा यूज़ करने पर क्या होगा, अपने ईयर ड्रम्स जो अंदर ईयर के अंदर एक ऑर्गन रहता है, ईयर ड्रम्स ख़राब हो जाते हैं. और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे साल यूज़ करने पर धीरे धीरे से हमारा ब्रेन भी डैमेज होने लगता है. सो दैट इज़ द बेसिक आइडिया दैट द ऑथर वांट्स टू मेंशन या. सो व्हाई डज दिस हैपन? इट्स बिकॉज ऑफ द कॉयल मैग्नेट डायफ्राम. तो यहाँ पे ऑथर क्या कर रहा है, साइंटिफिक फैक्ट के साथ हमको उनका ओपिनियन दे रहे हैं. सो बेसिकली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ पर्सुएसिव आर्टिकल डज. इट गिव्स द ऑथर और द राइटर्स ओपिनियन along with a fact. So what's a narrative? The purpose here is to communicate a story with the help of different characters and settings. For example, I kicked into the muzzles of the horse. So ये एक छोटा सा excerpt है, दो सेंटेंस, दो छोटे छोटे पैराग्राफ्स हमने सेलेक्ट किया है. दिस इज फ्रॉम योर चैप्टर 1 स्नैपशॉट्स, दैट इज द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. सो दिस इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. ओके, सो आई किक्ड इनटू द मजल्स ऑफ द हॉर्स. वंस अगेन इट रेड एंड स्नॉटेड, देन इट बिगैन टू रन. आई डिडंट नो व्हाट टू डू. तो यहाँ पे हम लिटरली उस हॉर्स के ऊपर बैठे हुए हैं और हम इमेजिन कर रहे हैं किस प्रकार का डर लग रहा है ऑथर को.
and also we understand what exactly the author is feeling. तो the horse leaped over 7 vines before I fell, then it continued running. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑथर खुद अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब भी कर रहे हैं और एक नरेशन भी दे रहे हैं. सो नरेशन का प्राइमरी पर्पस होता है एक स्टोरी बताना, एक इंसिडेंट या फिर अपने लाइफ का कोई भी एक इंसिडेंट को एक्सप्लेन करना. सो यू कैन हैव क्वेश्चंस ऑन दिस ऑल्सो वेयर द एग्जामिनर माइट आस्क यू write an article on the best moment of your life, or write an article on the saddest moment of your life, or write an article on a challenge that you have faced in the last 1 year. इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है. ये जो है वो एक नरेटिव होगा. तो ऐसे क्वेश्चन जब दिए जाएंगे आपको एक नरेटर बनकर आपको आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे. The next one, I got down and my cousin Morad kicked his heels into the horse and shouted, Wazir, run! Wazir, run! The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed. Fury of speed का मतलब होता है बहुत तेज भागना. So both of these excerpts are basically helping us understand what is a narrative. What is the format of a speech? So please remember this, the content of an article and a speech are same. Okay? तो हम speech का content दोबारा नहीं discuss करने वाले हैं. जो अपना article का content है, so we'll go back a bit in slides. So जो article का ये सब हमने content discuss किया है, तो यही रहेगा आपका स्पीच में भी. सो क्या डिस्कस किया हमने, स्टाइल्स ऑफ राइटिंग जो है, दैट इज़ योर द फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन और फैक्चुअल, द सेकेंड इज डिस्क्रिप्टिव, द थर्ड इज परसुएसिव एंड द फोर्थ इज नरेटिव. तो ये जो 4 स्टाइल्स ऑफ राइटिंग हमने डिस्कस किया है, अपने स्पीच में भी सेम चीज़ यूज़ करना पड़ेगा. तो आर्टिकल और स्पीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तो क्या डिफरेंस रहेगा आर्टिकल में, सॉरी स्पीच में, वो रहेगा अपना ग्रीटिंग. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग अ टाइटल, आर्टिकल में क्या करते हैं हम लोग, एक टाइटल देते हैं बिफोर वी हैव इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. और स्पीच में क्या करेंगे, हम एक ग्रीटिंग ऐड करेंगे इंस्टेड ऑफ अ टाइटल. तो अपने को स्पीच में टाइटल देने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट वी नीड टू डू इज गिव अ ग्रीटिंग. सो व्हाट इज अ ग्रीटिंग? इफ द एग्जामिनर स्पेसिफाइज ये आपका मॉर्निंग असेंबली है, तो you need to start with good morning friends, or good morning respected principal, or good morning everyone who's here, or the honorable chief guest, or good morning everyone, and I'm glad to be here standing in front of you, or thank you for giving me this opportunity to talk about this. So इस प्रकार से जो आप इंट्रोडक्शन देते हो उसको ग्रीटिंग बोलते हैं. सो आर्टिकल राइटिंग और स्पीच राइटिंग के जो कॉम्पोनेंट्स है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, वो एज इट इज़ है, वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. तो इसमें भी आपको इंट्रोडक्शन में क्या करना है, आपको ब्रीफली बताना है कि आप बाकी बॉडी में क्या डिस्कस करने वाले हो, और इसमें भी कंक्लूजन में क्या करना है, आपको कोई सजेशन देना है या समरी लिखना है, या आपके जो ओपिनियन या स्टैंड है उसको रिपीट करना है. और इस बॉडी में आपको फिर से क्या करना है, फैक्ट्स देने हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा देना है, या फिर आपको आपके आपके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सपोर्टिंग आइडियाज़, ओपोजिंग आइडियाज़, एग्जाम्पल्स, ये सब आपको फिर से देना पड़ेगा आपके बॉडी ऑफ द स्पीच में. तो आर्टिकल के लिखने के फॉर्मेट में और स्पीच के लिखने के फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है. Here also your introduction will have a brief idea of what you are going to discuss in the body, and your body is going to have a lot of information, explanation with the help of supporting ideas, opposing ideas, facts and examples discussing the body. तो same thing, introduction का एक पैराग्राफ, conclusion का एक पैराग्राफ, और आपका बॉडी रहेगा 2 या 3 पैराग्राफ्स में. So your body of the speech also is going to be in between 2 to 3 paragraphs. तो यहाँ पे डिफरेंस हमारा सिर्फ एक ग्रीटिंग है. तो आपका मार्किंग स्कीम भी सेम रहेगा. दैट इज योर ग्रीटिंग विल हैव 1 mark,
जैसे वहाँ पे टाइटल 1 मार्क का था, फिर इंट्रोडक्शन का 1.5 मार्क्स, फिर बॉडी का 3 मार्क्स, conclusion is again going to be 2 marks, and then your overall grammar and spelling 1.5 marks, and overall format जो आपका organization रहेगा उसका आपको फिर 1 mark मिलेगा. So the marking scheme also is going to be the same for speech. एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीटिंग जैसे हमने डिस्कस किया है, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर या चीफ गेस्ट, इट इज़ एन ऑनर टू बी हियर विद यू टुडे, और टुडे लेट्स टॉक अबाउट, और आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर डिस्कसिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू विथ यू. सो इस प्रकार से जो भी आप ग्रीटिंग देते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्पीच के लिए. सो व्हाट डू यू नीड टू डू नाउ? तो आपको अभी क्या करना है, आपको जितना हो सके उतना रीड करना पड़ेगा, एंड अलॉन्ग विथ रीडिंग यू ऑल्सो हैव टू practice, practice and practice. So I don't see anyone having any doubts in this, so we'll conclude today's session now. So basically what did we discuss in today's session? A quick summary is we have discussed एक आर्टिकल का क्या फॉर्मेट है, कितने मार्क्स मिलते हैं और किस प्रकार से लिखना है, कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और एक स्पीच को कैसे लिखना है. Okay, so I hope you like the session. If you have any doubts, any other session you want us to do, you can comment below so that we can do that in the next session. आप चाहते हो कोई और टॉपिक पे सेशन करें इसी क्वेश्चन और आंसर बेस्ड फॉर्मेट में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो so that we can plan and have that session next time. So thank you so much. और हमारे चैनल 11 CBSE कॉमर्स क्वेस्ट को सब्सक्राइब करने के लिए just go into the Unacademy learning app. You can choose the subject that or channel that you want to subscribe to, and you can use the code RITI to avail the 10% discount. Thank you so much.